and SCKG 2.22 YouTube channel classes. And in the series of learning GFR 2017, in this session we are going to discuss about chapter 2.3, that is related to submission of records and information. So GFR में जो सेकेंड चैप्टर है वो सेकेंड चैप्टर इज रिलेटेड टू जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका जनरल सिस्टम कैसा है उसके बारे में वी आर स्टडिंग इन चैप्टर 2. एंड इन चैप्टर 2.3 हेडिंग इज सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन. एज ए कॉमन मैन, if we interpret the terminology submission of records and information, this indicates somewhere submitting the records and information for checking purpose, for verification purpose, for audit purpose. Yes, so this 2.3 is going to be chapter related to audit. Since it is financial management, so audit is the integral part of this system. It starts from accounts and it ends with the audit. So in this session we are going to discuss about submission of records and information. So just to remind you, this is a chapter 2 and chapter 2 talks about general system of financial management. On all these topics we have discussed. If you have not seen, please go back to the playlist and you will find all the relevant provisions there. So this is the chapter 2.3. This is the chapter 2.3, submission of records and information. So rule 39, we see rule 39. What rule 39 says? Demand for information by audit or accounts officer. A subordinate authority shall afford all reasonable facilities to the audit officer and pay an accounts officer for discharge of his functions and furnish fullest possible information required by him for the preparation of any official account or report, payments and internal audit. So this rule 39 mandates all the government departments to produce their records before the accounts officer and audit officer, before the accounts officer, account section, accounts branch and audit party. For what purpose? For the preparation of official account, report, payments and internal audit. So हमें क्या करना है, जितने भी फाइनेंशियल पेपर्स हैं उनको हमें एक तो अकाउंट्स ऑफिसर को देना है. किस लिए देना है? पेमेंट के लिए देना है. अकाउंट्स ऑफिसर तो पेमेंट करेंगे और उसके बाद से उस पर वो मंथली स्टेटमेंट बनाते हैं और उसके बाद से इंटरनल ऑडिट को देना है. देखिए यहाँ पर इंटरनल ऑडिट की बात हो रही है, एक्सटर्नल ऑडिट की बात नहीं हो रही है. एक्सटर्नल ऑडिट की बात कहीं और है, जब उसकी चर्चा करेंगे तो हम आपको याद दिलाएंगे. दिस इज टॉकिंग अबाउट इंटरनल ऑडिट. सो इंटरनल ऑडिट का मतलब अब यहाँ पर ये जो रूल 39 है, दिस मैंडेट्स दैट ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल हैव अ टीम कॉल्ड इंटरनल ऑडिट. सो आपको एक ऑडिट टीम रखनी है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट. दिस इज व्हाट द प्रोविजन सेज in rule 39. Next, rule 40. This all we have discussed in the previous classes. It is not related to 2.3, it is related to 2.2. Rule 40 says a subordinate authority shall
not withhold any information, books or other documents required by the audit officer or accounts officer. Very important. कई बार लोग सोचते हैं कि ऑडिट वाले को ये पेपर नहीं देते, वो पेपर नहीं देते, ये फाइल नहीं दिखाते, वो नई फाइल दिखाते, वो सब ठीक है. अगर ऑडिट वाले ने मांगा कि नहीं मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए, मुझे ये फाइल चाहिए, आई नीड दिस रिकॉर्ड, आई नीड दिस पेपर, the government authority is bound to produce that paper before him. There is no second option. If audit officer asks some papers, if accounts officer asks some details, we are bound to produce the papers and records to the audit officer and or accounts officer. So बिल्कुल ध्यान में रखना है. हमारे पास क्या होता है, ब्रांच में भी इंटरनल ऑडिट होती है, SRO में भी इंटरनल ऑडिट होती है, हेडक्वार्टर में भी इंटरनल ऑडिट होती है. तो अगर मन में ऐसी कोई भावना हो कि इस फाइल से मेरे में लगता है कि कुछ गलती हुई होगी, इसको मैं हटा लूँ, नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइजमेंट ऑडिट पार्टी को पता है, उनके पास एक चेक लिस्ट होता है और वो चेक लिस्ट से उनको पता है कि मुझे क्या चेक करना है और क्या नहीं करना है. वो अपने चेकलिस्ट के अनुसार चलते हैं. उनके चेकलिस्ट में जितना डिटेल है वो किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं. 1 बाय 1, चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 1 बाय 1 वो सारा रिकॉर्ड अपने चेकलिस्ट के अनुसार चेक करते हैं. क्योंकि ये उनके ऊपर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इम्पोज किए गए हैं. दे आर सपोज टू डू दैट थिंग. सो इसलिए सबऑर्डिनेट ऑथोरिटी शैल नॉट विदहोल्ड एनी इंफॉर्मेशन, books or other documents required by audit officer or accounts officer. So audit officer और accounts officer अगर कोई भी रिकॉर्ड मांगते हैं तो कोई भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी मना नहीं कर सकती, आपको प्रोड्यूस करना है. रूल 41 बहुत इंपॉर्टेंट है. रूल 41 ये जब रूल 40 जो है, रूल 40 में ये कह रहा है कि ऑडिट ऑफिसर ने जो कुछ भी पेपर मांगा हमने देना है. कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट होते हैं जिनके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल पेपर होते हैं, कुछ सीक्रेट पेपर्स होते हैं, कुछ टॉप सीक्रेट पेपर्स होते हैं, जिसको रिवील करना डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट में ठीक नहीं रहेगा. क्या उनको भी जो प्रोड्यूस करना है, क्या उनको भी दिखाना है, उसके बारे में रूल 41 में बात हो रही है. इफ द कंटेंट्स ऑफ एनी फाइल आर कैटेगराइज्ड एज सीक्रेट और टॉप सीक्रेट, यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल की बात नहीं हो रही है, रेस्ट्रिक्टेड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सीक्रेट और टॉप सीक्रेट की बात हो रही है. इफ़ द कंटेंट्स ऑफ एनी फाइल आर कैटेगराइज्ड एज सीक्रेट और टॉप सीक्रेट, द फाइल मे बी सेंट पर्सनली टू द हेड ऑफ द ऑडिट ऑफिस स्पेसिफाइंग दिस फैक्ट, who will then deal with it in accordance with the standing instructions for handling and custody of such classified documents. This rule 41, ये rule 41 ये MCQ 2023 के मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था, यूपीएससी के एग्ज़ाम में आया था. यूपीएससी के एग्ज़ाम में आया था कि सीक्रेट और टॉप सीक्रेट फाइल में बी सेंट पर्सनली, इसमें लिखा हुआ था बाई स्पीड पोस्ट, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, पर्सनली टू द हेड ऑफ द ऑडिट ऑफिस. सो यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो है पर्सनली ही जाएगा, वो उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं भेजना है. सीक्रेट और टॉप सीक्रेट के फाइल्स हैं और अगर ऑडिट ऑफिसर देखना चाहते हैं तो पर्सनली उसको कहाँ भेजा जाएगा, हेड ऑफ द ऑडिट ऑफिस के पास भेजा जाएगा. सारे ऑडिट पार्टी उसको नहीं चेक कर सकती है. हेड ऑफ द ऑफिस जो होंगे ऑडिट पार्टी के, उनको वो दिखाया जाएगा. who will deal with it in accordance with the standing instructions for handling and custody of such classified documents. अब क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की जिम्मेदारी और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको इसकी सिक्रेसी बनाए रखने की जिम्मेदारी उस ऑडिट अफसर की हो जाती है. बहुत रिस्की काम है ये, क्योंकि सीक्रेट और टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन वे इंफॉर्मेशन है विच कैन put the secrecy, which can put the security of the India at in danger. So ऐसे situation में we have to protect that secret and top secret information also. At the same time
If audit officer asks, we have to send him personally that secret or top secret file to the head of the audit office. So यहाँ पे सिर्फ 3 ही प्रोविज़न है ऑडिट के बारे में, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है, सब कुछ इसमें मेंशन कर दिया गया कि हमें प्रोड्यूस करना है. सो रूल 2.3 में सिर्फ 3 ही प्रोविज़न ऑफिस ऑडिट के बारे में, रूल 30, रूल 39, रूल 40 एंड रूल 41. ठीक है. पर्सनली टू द हेड ऑफ द ऑडिट ऑफिस, उनके पास इसको सीक्रेट और टॉप सीक्रेट को इंफॉर्मेशन को फाइल को भेजना है. अब इसके बाद से हमने इसमें देखा कि जो ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट का हमने अलग अलग क्लास लिया था. 2.1 जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट ऑफ मनी. 2.2 डिफाल्केशन एंड लॉसेस एंड 2.3 सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन. राइट. यहाँ से हम आपको कुछ फंड के, गवर्नमेंट फंड के बारे में कुछ एडिशन करके बता रहे हैं. ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर आना जरूरी है. अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो जीएफआर आपको समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा तो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स आपको समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो पॉलिटी आपको समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे. सो ये बोनस मटेरियल इस सेशन में हमारे तरफ से. टाइप्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड कितने तरह के होते हैं? दे आर केप्ट इन 3 पार्ट्स. 3 तरह के होते हैं. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट accounts funds: consolidated fund, contingency fund, public accounts of India. So consolidated fund of India, this is the most important of all accounts of the government. This fund is filled by, ये फंड कैसे भरता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. जितने भी इंडिया में टैक्सेस लिए जाते हैं दैट डायरेक्टली गोज टू कंसोलिडेटेड फंड. लोन्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लेती है तो वो लोन भी कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा. रिटर्निंग ऑफ लोन्स, इंटरेस्ट ऑफ लोन्स टू द गवर्नमेंट बाय एनी अदर एजेंसी. हमने किसी कंट्री को, हमने श्रीलंका को लोन दिया है और वहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा, लोन आएगा, वो भी कंसोलिडेटेड फंड में ही ऐड किया जाता है. सो कंसोलिडेटेड फंड का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ फंड है, एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है. उसके बाद से दूसरे कंट्री से अगर हम लोन लेते हैं, चाहे दूसरी एजेंसी से, गवर्नमेंट अगर दूसरी एजेंसी से लोन लेती है वो उसमें आएगा. और हमने अगर, गवर्नमेंट ने अगर किसी एजेंसी को चाहे किसी कंट्री को लोन दिया है तो वो लोन रीपे होगा ना. तो जब वो लोन वापस आएगा, रिटर्न आएगा, उसका इंटरेस्ट वापस आएगा, दैट ऑल्सो विल बी पुट इन कंसोलिडेटेड फंड. The government needs all its expenditure from this fund only. So government meets all its expenditure from this fund. गवर्नमेंट के जितने एक्सपेंडिचर होते हैं कंसोलिडेटेड फंड से ही होते हैं. मैक्सिमम इनकम कंसोलिडेटेड फंड में आता है और इसलिए मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो होता है कंसोलिडेटेड फंड से ही होता है. चाहे प्रेसिडेंट का सैलरी हो और चाहे बाकी लोगों की, जैसे भी जितने भी डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस हों, वो सब कंसोलिडेटेड फंड से ही किए जाते हैं, एक्सपेंड किए जाते हैं. द गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस फंड. सिंस दिस कंसोलिडेटेड फंड इज ए मास्टर फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेंस गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंट अप्रूवल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस फंड. उस फंड से अगर 1 रुपया भी निकालना है तो उसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है. बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के इवन 1 रुपी कैन नॉट बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड. द प्रोविजन फॉर दिस फंड इज गिवन इन आर्टिकल 2661 of the Constitution of India. Each state
can have its own consolidated fund of state with similar provision. So consolidated fund of India अलग होता है और consolidated fund of particular state, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, ये जितने भी स्टेट हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, इनके अपने सिमिलर कंसोलिडेटेड फंड होते हैं. द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट्स दिस फंड्स एंड रिपोर्ट्स टू द रिलेवेंट लेजिस्लेचर ऑन देयर मैनेजमेंट. सो जब ऑडिट की बात आई थी तो हमने बताया था कि इंटरनल ऑडिट की बात हम कर रहे थे, ये एक्सटर्नल ऑडिट की बात है. ये जो एक्सटर्नल ऑडिट है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या similar funds in the other organization, they are audited by the controller and audit general, CAG हम बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं CAG ऑडिट है. So CAG audits these funds and report to the relevant legislators on their management. So ये CAG ऑडिट करते हैं और ऑडिट करने के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में ये पार्लियामेंट को ये रिपोर्ट करते हैं और स्टेट के केस में स्टेट लेजिस्लेचर को रिपोर्ट करते हैं. सो ये रहा कंसोलिडेटेड फंड, सबसे बड़ा फंड, भारत सरकार का अपना फंड, जिससे पैसे निकालने के लिए बजट पास कराना पड़ता है. बजट पार्लियामेंट में, लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है और उसको मेजॉरिटी से पास कराया जाता है. तब जाकर जितना बजट उसमें पास होगा, जिस हेड का बजट पास होगा, जिस मिनिस्ट्री का बजट पास होगा, जिस डिपार्टमेंट का बजट पास होगा, वहीं लोग उस कंसोलिडेटेड फंड से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं. ये है कंसोलिडेटेड फंड का करिश्मा. कंटीजेंसी फंड. द कंटीजेंसी फंड इन सिंपल वर्ड इज ए रिजर्व ऑफ मनी सेट असाइड टू कवर पॉसिबल अनफोर्सीन फ्यूचर एक्सपेंसेस. सो कंटीजेंसी का आकस्मिक इसको बोलते हैं, हाँ, आकस्मिक निधि इसको हिंदी में बोल सकते हैं. सो आकस्मिक क्या होता है? अचानक कुछ लाइफ में देयर आर सो मेनी थिंग्स वी प्लान एंड वी एग्जीक्यूट एंड मेनी थिंग्स हैपेंस अनप्लान्ड आल्सो. टू मीट द अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर कंटीजेंसी फंड इज मेड. अनप्लान्ड क्या हो सकता है? कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, भूकंप हो सकता है, अर्थक्वेक, फ्लड, कोरोना लाइक सिचुएशन. सो इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट, इट मे नॉट बी प्रूडेंट टू वेट फॉर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल. when government goes to parliament for the approval, that may be very late. So contingency needs then and there solution. So इसलिए contingency fund में पैसे पार्क करके रखे जाते हैं. The contingency fund of India is used during the time of crisis in the nation. For instance, a natural calamity and money is required to deal with it. Right? सो अब देखिए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है. ये तो कंटीजेंसी फंड का जनरल डेफिनेशन हो गया. अब कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है? प्रोविजन फॉर दिस फंड इज मेड इन आर्टिकल 267(1). आप अगर ध्यान देंगे तो इससे पहले वाला मैं दिखा देता हूँ. यहाँ पर ये कंसोलिडेटेड फंड है, ये 266(1) है. कंसोलिडेटेड फंड 266(1), कंटीजेंसी फंड 267(1). Like this we have to keep in our mind also. This question may be asked in GFR also. This question may be asked in constitution paper, polity paper also. So this pertains to article 267(1) of the Constitution of India. Its corpus is rupees 500 crore. अभी भी 500 crore क्या है क्या? आगे इसकी चर्चा करेंगे. The Secretary Finance Ministry holds this fund on behalf of President of India. So President of India के ही हाथों में सारा पावर है, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होते हैं वो इस फंड को मैनेज करते हैं. दिस फंड इज यूज्ड टू मीट अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर. ठीक है.
ईच स्टेट कैन हैव इट्स ओन कंटीजेंसी फंड। ब्यूटीफुल। सो जिस तरीके से कंसोलिडेटेड फंड एक इंडिया की अलग होती है और बाकी स्टेट भी सिमिलर फंड रखते हैं, उसी तरीके से ये कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। सिमिलरली हर स्टेट, बिहार, यूपी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, जितना भी स्टेट का नाम आप ले लीजिए, उन सारे स्टेट में भी कंटीजेंसी फंड अपने लिए रखने की ज़रूरत पड़ती है। वाई? टू मीट द क्राइसिस एट दैट टाइम। सो इसलिए कंसोलिडेटेड फंड के जैसा ही कंटीजेंसी फंड भी हर स्टेट के पास होता है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है आपका ये 267(1) में आ गया। इट इज a fund used by a business for small expenditure items and periodical restored to a fixed amount। ये देखिए, कई बार ऐसा होता है कि ब्रांच ऑफिस का कुछ डेली एक्सपेंसेस होते हैं, RO/SRO का कुछ डेली एक्सपेंसेस होते हैं, हर ऑफिस के कुछ डेली एक्सपेंसेस होते हैं। उन डेली एक्सपेंसेस स्मॉल होते हैं, वो स्मॉल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए भी कंटीजेंसी फंड का प्रोविज़न होता है। सो हमारे ऑफिसेज में क्या होता है, कंटीजेंसी फंड महीने में एक बार आ जाता है, एडवांस में आ जाता है और उसको हम यूज करते रहते हैं, होता है ना। सेम थिंग इज टॉकिंग, इट इज़ द फंड यूज्ड बाय अ बिजनेस फॉर स्मॉल एक्सपेंडिचर आइटम्स एंड periodically restored to a fixed amount। The contingency fund of India is utilized to meet unpredictable expenses। ठीक है जी। Every state can maintain its contingency fund according to Article 267(2). Very important। As per Article 267(1), contingency fund of India, I repeat, as per Article 267(1), this is the 267(1). Article 267(1) makes provision for contingency fund of India. Article 267(2) makes provision for contingency fund of every state। Clear? The contingency fund of India is controlled by Finance Ministry, Secretary on behalf of President। ये हम जान चुके हैं। Now third account is public accounts of India। Consolidated fund, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स। सो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है, इट इज कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 266(2). जस्ट टू रिमाइंड यू, आर्टिकल 266(1) इज रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड, आर्टिकल 266(2) इज रिलेटेड टू पब्लिक अकाउंट्स। All other public money other than those covered under the Consolidated Fund of India, Consolidated Fund of India के अलावा जितनी भी मनी रिसीव की जाती है वो पब्लिक अकाउंट में रिसीव की जाती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या क्या रिसीव की जाती है हम डिस्कस कर चुके हैं। टैक्सेस, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, कुछ बोरोइंग्स होती हैं, कुछ लेंडिंग्स होती हैं, उन सबको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कैटर करते हैं। पब्लिक, उसके अलावा जितने भी फंड आते हैं, जितनी भी पब्लिक मनी है, ऑल अदर पब्लिक मनी रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड टू दिस फंड अकाउंट। दिस इज मेड अप फॉर बैंक सेविंग अकाउंट्स ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, डिफेंस फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, नेशनल कैलेमिटी एंड कंटीजेंसी फंड, प्रोविडेंट फंड, पोस्टल इंश्योरेंस, सिमिलर फंड्स। सो for example, let us take example of provident fund। So provident fund is there, that money, provident fund में क्या होता है, हम जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं हमारा कुछ PF कटता है, वो PF कट करके कहाँ जाएगा, वो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाएगा। Because for withdrawing the amount from consolidated fund, government needs parliament approval। और ये प्रोविडेंट फंड का क्या है, डे टू डे बेसिस पर किसी एम्प्लॉई को कभी ज़रूरत पड़ा, कोई कभी रिटायर हो रहा है,
तो इसलिए इसका अलग से फंड बनाया गया एंड दैट फंड इज नोन एज पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया. सो लाइकवाइज all incomes and expenditure are involved, all expenditure and all income and expenditures are maintained in public accounts of India. The government does not need permission to take advance from this account. इसके लिए गवर्नमेंट को परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है. किसकी परमिशन? पार्लियामेंट की परमिशन. द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया कैरी आउट द ऑडिट ऑफ द पेमेंट्स फ्रॉम दिस फंड. सो इस फंड की भी ऑडिटिंग जो होती है वो कैग करते हैं. कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो पब्लिक अकाउंट्स की ऑडिटिंग करते हैं. एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हैज सिमिलर अकाउंट्स एंड द गवर्नमेंट डज नॉट रिक्वायर कंसेंट टू टेक एडवांसेस फ्रॉम द फंड्स ऑफ द अकाउंट. सो अभी हमने देखा पब्लिक अकाउंट्स का ऑडिट कौन करते हैं? सीएजी करते हैं. कंसोलिडेटेड फंड का ऑडिट कौन करते हैं? सीएजी करते हैं. ऑडिट की बात हमने कंटीजेंसी फंड में की नहीं. कंटीजेंसी फंड भी तो हमने देखा था. सो कंटीजेंसी फंड में ऑडिट की बात नहीं की है. क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए क्योंकि कंटीजेंसी फंड may be treated as another form of consolidated fund. कंसोलिडेटेड फंड से एक फिक्स्ड अमाउंट कंटीजेंसी फंड में जमा कर दिया जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो उस कंटीजेंसी फंड को स्पेंड किया जाता है. आफ्टर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट टेक्स पार्लियामेंट अप्रूवल. एज फार एज consolidated fund is there, for consolidated fund prior approval of parliament is required. For contingency fund post approval of the parliament is required. और जब एक बार पार्लियामेंट का अप्रूवल आ गया तो दैट विल ऑल्सो बी ऑडिटेड एज इफ कंटीजेंसी फंड, एज इफ कंसोलिडेटेड फंड. कंटीजेंसी फंड का भी उसी तरीके से ऑडिट होगा जैसे कंसोलिडेटेड फंड का ऑडिट होता है, क्योंकि उसको भी पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, पोस्ट अप्रूवल चाहिए. इतना ही फर्क है. टू मीट द अनसीन कंटीजेंसीज. सो ये पब्लिक फंड हमने पढ़ लिया. इसको हमने कैटेगराइज किया है इस तरीके से. गवर्नमेंट अकाउंट जो है कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड पब्लिक अकाउंट में है. इसके बारे में ये पूरी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं. यहाँ पर सेक्शन को हमने डाल दिया है आपके समझने के लिए. यहाँ पर इनकम, ये जो कंटीजेंसी फंड है फिक्स्ड कॉर्पस ऑफ ₹500 करोड़ लिखा है, ये हमें जानना है. द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया बिगेन विद ए कॉर्पस ऑफ ₹5 करोड़. सो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया सबसे पहले 5 करोड़ से शुरू हुई, विच वाज इवेंचुअली एक्सपेंडेड टू 500 करोड़ इन 2005. सो पहले कंटीजेंसी फंड में 5 करोड़ रुपीज़ पार्क किए जाते थे. 2005 से इसमें 500 करोड़ रुपीज़ पार्क किए जाने लगे. थ्रू फाइनेंस बिल 2021 द बजट फॉर द ईयर्स 2021-22 suggested increasing India's contingency fund from ₹500 crore to 30,000 crore. सो ये कंटीजेंसी फंड का आप इंक्रीज देख लीजिए. इनिशियली इट वाज 5 करोड़ रुपीज़, then in 2005 it was increased to 500 crore rupees, and from 2021-22 it has been increased from 500 crore rupees to 30,000 crore rupees. So now as a part of MCQ, as a part of current affairs, question comes, how much amount is parked with the contingency fund? The answer is 30,000 crore. Right? Please do like, subscribe and share my YouTube channel SGKG Studies. This is your channel only, and the another channel is SGKG 2.22. All RTI classes are uploaded here only. So please do like, subscribe. And अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो they are in the search of the relevant classes. So please do share to your friends also. Please facilitate them to have access to these free classes. Please make utilization of this
We meet in the next class. Till then, if you have not liked, please like, please put your comments, please subscribe. We'll meet in the next class. Till then, namaskar.